Very good morning today. I am going to take Albert Einstein at school, right? Today we will see this lesson and it will help you to learn about Albert Einstein's life story. And this story is taken from the young Einstein. The author of this story is that Patrick Pringle. We learn through this extract about troubles Albert Einstein was facing when he was in a school. We see that he didn't like school that much, means he was hating the school. It is essential about how Albert defied the traditional methods of teaching. He directly indirectly opposed the teaching method of traditional those time. Moreover, he always felt like he didn't fit in it. Further, we also get to know about the teacher who didn't like him. It was because he questioned the things and raised a valid point and proper point before teacher. That is why we will learn about never heard before aspect of genius physicist childhood. We see how the great mind also had faced struggle concerning their intelligence, how they overcame those problems. So let us come to the detailed summary of this chapter Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Right? In this story, my dear friend, we learn about the father of modern physics. Albert Einstein is known all over for his valuable contribution to physics and the theory of relativity. However, this story brings about his school days, which were not that much happy and pleasant. Naturally, everyone must think that such a genius mind would have excelled at school, but it was not so when he was in school. Right? The story begins with the young Albert Einstein being in his history class. Teacher asks him about certain date, to which Albert admits that it is pointless to memorize the dates. He was of thinking that he can flip through pages whenever he want to know the date about the something or a history. That is why he didn't believe in mugging up the facts. So he was opposing the teacher and raising the question over the teacher's question. Consequently, we learn that doesn't like the school as it adopt traditional method of teaching. He dislikes the conventional form of education. Similarly, teacher also means those teacher who was teaching to Albert Einstein's also don't have much liking to him. They consider him as a disgrace, and the history teacher especially didn't like him. When this incident happened in history class, teacher get irritated and ask him to leave the class immediately. Einstein didn't like his home too, as he was comfortable there. In fact, he didn't like school to some extent that he thought of never passing the exam to get the school diploma. As he likes science, he wish he could study just this subject only and math also. Moreover, he doesn't understand the reason why he needs to study other subject where his interest doesn't lie. That was his point of view. After that, they sent him to Munich and the story repeated there too. Albert didn't take any interest there and was only wasting his father's money. He now has efficiency epiphany of giving up school together as he asked his friend. Even where he was living, his land owner was drunkard and his wife all the time fighting. Even landlady beating all the time to children. So that picture also he hate. So he asked his friend Yuri to arrange for a doctor. He plans to ask the doctor to write him off as a lunatic
and not fit for a school. Upon meeting with the doctor, Albert confesses his love for mathematics. After that, headmaster calls him and reveals shocking news to him. What was the news? He tells Albert that due to his bad behavior, they are asking him to leave school. They feel his behavior disturbed the environment of the class and to other students also. It was surprising for Albert as he was ready to present medical report, but before that only school rusticated him, and in this way he leaves the school without even looking back. Only meets Yuri, who bids him farewell and wishes him luck for his future. The conclusion of this Albert Einstein at school, we learn even most genius mind didn't have easy life, and it is a struggle that makes us what we are, and we need to learn from that story, right? तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल इस अध्याय में इस बारे में आसानी से जानने की मदद करेंगे कि यंग आइंस्टाइन ने किस तरीके से स्कूल लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस किए। इस चैप्टर के लेखक है पैट्रिक प्रिंगल, जिन्होंने चैप्टर लिखा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब स्कूल में थे तब मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, हम देखते हैं कि उसे स्कूल पसंद नहीं था इतना, और अनिवार्य रूप से था कि अल्बर्ट ने शिक्षाओं को पारंपरिक तरीकों से कैसे सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा वो हमेशा महसूस करते थे कि वो स्कूल में फिट नहीं है। शिक्षकों के बारे में भी जानते थे कि वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने चीजों पर सवाल उठाए थे, और बल्कि टीचिंग मेथड पे भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। इस प्रकार हम जीनियस भौतिक विज्ञानी के बचपन के पहलू से और उनके लाइफ के बारे में कुछ सीख सकते हैं, राइट? हम देखते हैं कि कैसे सबसे बड़े दिमाग को अपनी बुद्धिमत्ता के विषय में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखिए थोड़ा डिटेल में। इस कहानी में हम सीखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक में उनके बहुमूल्य योगदान और सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। हालांकि यह कहानी उन दिनों की है जब वो स्कूल में पढ़ते थे, और इतनी सुखद नहीं है दोस्तों। स्वाभाविक रूप से हर किसी को यह सोचना चाहिए कि इस तरह प्रभावशाली दिमाग ने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा, ऐसा लगता है। लेकिन जब वो स्कूल में थे तब ऐसा नहीं हुआ था। कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपने इतिहास वर्ग में होने के साथ ही शुरू होती है। शिक्षक ने उन्हें निश्चित तारीख के बारे में पूछा, जिस पर अल्बर्ट स्वीकार करता है कि यह तारीखों को याद करने के लिए व्यर्थ है, याद करना व्यर्थ है। वह यह सोच के साथ जब सवाल खड़े करते इतिहास के टीचर के सामने, और तारीख को जानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहते हैं, तब टीचर बहुत गुस्सा हो जाते। इस प्रकार वह तथ्यों को गढ़ने में विश्वास नहीं करता था। नतीजन हम सीखते हैं अल्बर्ट को स्कूल पसंद नहीं है क्योंकि यह शिक्षण के पारंपरिक तरीकों को अपनाता है। वह शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षा के पारंपरिक रूपों को नापसंद करता है। इसी तरह शिक्षक भी उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे, वे उसे एक अपमान मानते थे, और खास करके इतिहास के सर टीचर उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब इतिहास की कक्षा में यह घटना हुई तो शिक्षक चिढ़ गए और गुस्सा हो गए, और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को तुरंत क्लास छोड़ने के लिए कहा। दोस्तों, आइंस्टाइन को अपना घर भी पसंद नहीं था। जहां पर वो रहते थे वहां पर उनके मालक और उनकी वाइफ हमेशा झगड़ा करते थे, और बच्चों को मारना, पीटना, दारू पीना, ये कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करता था ये पिक्चर। तो उन्हें कहीं ना कहीं स्कूल के अलावा भी घर भी पसंद नहीं था।
उन्होंने स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण होने के बारे में नहीं सोचा था, और उन्हें हमेशा लगता था कि वो पास होगे या नहीं होगे। जैसा कि वह विज्ञान पसंद करते थे, वो चाहते थे कि केवल उसी विषय का अध्ययन अध्ययन कर सके जिसको पसंद करते हैं। इसके अलावा वह इसी कारण को नहीं समझना चाहते थे, राइट। और वो कहते हैं कि मुझे रुचि नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं, ऐसे उनके विचार थे। इसके बाद उन्होंने म्यूनिक उन्हें म्यूनिक भेजा गया और कहानी वापस दोहराई गई। अल्बर्ट ने वहां कोई दिलचस्पी नहीं ली, केवल अपने पिता के पैसे बर्बाद किए, राइट। वही उनकी कजन सिस्टर, चचेरी बहन ने भी उनको रिक्वेस्ट की, कहा कि वो पढ़ाई करे और ध्यान दे, राइट। लेकिन वही सवाल उन्होंने किया कि वो रट्टा मारने में विश्वास नहीं करते हैं, राइट। उसे अब एक स्कूल छोड़ने का साथ मिला, राइट। इसीलिए उसने अपने दोस्त यूरी से डॉक्टर की व्यवस्था करने के लिए कहा। वह डॉक्टर से स्कूल के लिए फिट नहीं होने का एक पागल रूप में एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। डॉक्टर से मिलने पर अल्बर्ट गणित के प्रति अपना प्यार कबूल करता है। उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, या उसी दौरान हेडमास्टर उन्हें बुलाते हैं और उसे चौंकाने वाली खबर देते हैं। वो अल्बर्ट को बताते हैं कि उसके व्यवहार के कारण उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें लगता है, मतलब स्कूल को लगता है कि उनके व्यवहार से स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है और दूसरों बच्चों को भी तकलीफ होती है पढ़ने में। यह अल्बर्ट के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह मेडिकल रिपोर्ट पेश करने वाले थे और तैयार थे। लेकिन इससे पहले ही उन्हें रस्टिकेट किया गया, निकाल दिया गया। इस प्रकार वह बिना पीछे देखे स्कूल छोड़ देते हैं। केवल यूरी, उनका दोस्त, उन्हें मिलने आता है और विदाई देता है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। तो दोस्तों, हम सीखते हैं कि सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के पास आसान जीवन नहीं होता। उनके लाइफ में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है और यही संघर्ष उन्हें अच्छा बनाता है। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है, राइट। तो आइए पढ़ते इस लेसन को और समझते। थैंक यू।